أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत तलाक का पहला रुकू पारा नंबर 28 या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सहु ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़ औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़ व अशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न थलाथतु अशहुर वल्लाई लम यहिज़्न व उलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यज़अन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा ज़ालिक अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़िम लहू अजरा अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुज़र्रूहुन्न लितुज़य्यक़ू अलैहिन वइन कुन्न उलाति हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन हत्ता यज़अन हम्लहुन फ़इन अर्ज़अन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ़ वइन तआसरतुम फसतुरदिउ लहू उख़रा लियुन्फ़िक़ ज़ू सातिन मिन सातिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ الطلاق پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی اسوہ حسنہ ہے، ہر معاملے میں، نکاح میں بھی، طلاق میں بھی، ہر مسئلے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ طلاق اصل میں اس عقد نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے جو ایک عورت اور مرد آپس میں عقد نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کی جو آیات کریمات ہیں ان کے اندر 4 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ پاک کا تقوی اپناؤ نکاح کے معاملے میں۔ یہاں پر بھی سورہ الطلاق کے اندر رب کائنات نے 5 مرتبہ یہ حکم دیا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اپنے رب سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ فوائد اور ثمرات عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے سورہ تغابن میں بیویوں کے ساتھ رہن سہن میں کشادہ دلی، عفو و درگزر کے ساتھ مدارات اور گزارا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اگر میاں بیوی کا اختلاف حد سے بڑھ جائے اور گزارے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے جس کا نام ہے الطلاق۔ الطلاق بھی ایک اعتبار سے رحمت ہے، جب گزارا نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، طبیعت نہیں ملی، جس طرح قرآن مجید میں واقعہ ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی لیکن طبیعت نہ ملی، طبیعت کے نہ ملنے سے جدائی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو یہ ایک راستہ ہے۔ خودکشی نہ کی جائے، خودکشی حرام ہے، خودکشی کے خاتمے کے لیے اللہ پاک نے یہ راستہ رکھا ہے الطلاق۔ اس کے اندر اتنی بات ہے طبیعت میں موافقت نہیں تو جدائی ہو گئی، اور جو خاندانوں کے اختلاف ہے اور جو عداوت ہے کہ جی اس کو قتل ہی کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، شریعت میں اس کا بالکل جواز نہیں۔ اتنی سی بات ہے، ابھی انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ الطلاق کے اندر کہ اللہ پاک نے کس طرح خیر کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ طلاق کے بارے میں بس ایک طلاق ہی کافی ہے، دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت نہیں۔ ایک طلاق ہو گئی تو اس کے بعد عورت کے ذمے یہ فرض ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، اپنے خاوند کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے گی۔ خاوند کو منع کیا ہے کہ گھر سے نہ نکالے، عورت کو بھی منع کیا ہے کہ خاوند کے گھر سے مت نکلے۔ ایک طلاق کے بعد عدت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے، اس کا نان و نفقہ، خرچہ اور رہائش یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طلاق دے دی تو گھر سے نکال دیا، اور پہلے بھی بعض اوقات نکال دیا جاتا ہے، طلاق سے پہلے نکال دیا، یا اس قسم کی شدید بدتمیزی کے ساتھ گھر سے نکالا کہ جیسے کوئی عداوت ہے اور دشمنی ہے۔ عداوت اور دشمنی والی کوئی بات نہیں، بس گزارا نہیں ہوا تو اللہ پاک نے ایک راستہ رکھا ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر یہ طلاق کا سلسلہ نہیں ہے، پھر وہاں زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور اس بات سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو اللہ پاک کو ناپسند ہے وہ الطلاق ہے، الطلاق ناپسند ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے
ये मसाइल बयान हुए हैं अत-तलाक के और सूरत उन-निसा में, इसी तरह सूरत अहज़ाब में। तो अल्लाह माफ करे अगर जिंदगी में इस काम से वास्ता पड़ जाए तो पहले इसका सुन्नत तरीका सीखा जाए कि प्यारे रसूल का तरीका क्या है, आपने क्या रहनुमाई फरमाई है, उसके बाद तलाक वाला मामला किया जाए। होता इसके बरक्स है। एक बात बनी हुई है ना कि एक आदमी को पेशाब की तकलीफ थी, वो इस्तिंजा करता तो बाद में फिर पेशाब खारिज हो जाता। इस तरह वो बड़ा तंग आ गया। तंग आकर उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, पेशाब पहले कर लेता हूं, इस्तिंजा बाद में कर लेता हूं। तो उसके बाद फिर जब मामला उसका हद से बढ़ गया तो कहने लगा मैं इस्तिंजा ही पहले कर लेता हूं, बाद में पेशाब करता रहूंगा। ये हाल है। तलाक देने के बाद फिर लोग मसला पूछते हैं कि इसका मसला क्या है। कुरान और सुन्नत में तलाक से पहले कोई पूछते नहीं, बाद में सवाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत के खिलाफ अपना मामला कर चुके होते हैं। उसी की मिसाल है कि पेशाब पहले कर ले और इस्तिंजा बाद में, ये तो सही तरीका हो गया। लेकिन जब उसका सिलसिला नहीं चलता तो कहता है चलो मैं इस्तिंजा पहले कर लेता हूं, पेशाब बाद में कर लूंगा। इस तरह तो नहीं तरीका। अल्लाह पाक ने इसकी पूरी तफसील बयान फरमाई है। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम तलाक दो औरतों को, फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो उन्हें उनकी इद्दत के वक़्त तलाक दो। तलाक देने का एक वक़्त है। वक़्त क्या है कि औरत तहारत के अय्याम में हो, तुहर के अय्याम में, और खामद ने उस औरत से सोहबत नहीं की। ये दो शर्तें हैं, एक तो तहारत के अय्याम में और दूसरा खामद ने उस तहारत के दौरान अपनी बीवी से सोहबत नहीं की। ये है लिइद्दतिहिन्ना, इस वक्त तलाक दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु अय्याम हैज में अपनी बीवी को तलाक दे दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया मुरहु फलयुराजिहा, उसे हुक्म दो कि अपनी बीवी से रजू करे, फिर तहारत के दिन आए, फिर हैज के दिन आए, फिर तहारत के दिन आए, फिर वो तलाक दे। आपने बड़ी सख्ती से नाराजगी का इजहार फरमाया। ये है इद्दत व अहसुल इद्दता, और इद्दत को गिनो, गिनती करके रखो, इसकी सही तरीके से गिनती करो, शुमार करके रखो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह पाक से डरो। ये बार बार लफ्ज आएगा, निकाह में भी ये लफ्ज बार बार आता है और तलाक में भी। अल्लाह से डरो। रब्बकुम, जो तुम्हारा रब है, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्न, ना तुम निकालो उनको उनके घरों से। तलाक दे दी, तलाक के बाद इद्दत के अंदर औरत को घर से नहीं निकालना, वो खामद के घर में रहेगी। ना तुम निकालो, खामद को हुक्म दे दिया। वला यखरुजना, और ना वो खुद निकले, औरत को भी मना कर दिया, वो भी नहीं जा सकती। इल्ला यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि कोई खुली बेहयाई अमल में लाए। वो औरतें फाहिशा बेहयाई वाला सिलसिला है या बदतमीजी हद से ज्यादा है, फिर है वरना नहीं। इल्ला अयतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना व तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हद्दें हैं, अल्लाह की हद्दें हैं। व मन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो अल्लाह ताला की हद्दों से आगे बढ़ता है, फक़द ज़लम नफ्सहू, तो उसने अपने आप पर जुल्म कर लिया। ला तदरी, तुम नहीं जानते,
लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। इसमें यह हिकमत है कि औरत खामद के घर में रहेगी दुराने इद्दत। अल्लाह ताला नई बात पैदा कर दे। नई बात कौन सी है? सुलह वाली, कि उनके आपस में सुलह हो जाए। और अगर छड़ियां पकड़ के पहले ही निकाल दिया जाए तो फिर सुलह के इम्कान तो खत्म हो जाते हैं, या कम से कम बहुत दूर चले जाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला कोई आसानी वाला मामला पैदा कर दे, इसलिए दौराने इद्दत औरत अपने खामन के घर में रहेगी। फ़इज़ा बलगन अजलहुन, फिर जब वो अपनी मियाद को पहुंचने लगे, इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाए, फ़अम्सिकूहुन्न बिमारूफ, तो उनको रोक लो अच्छे तरीके से रख लो और उनके साथ जिंदगी बसर करो। औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमारूफ, या अच्छे तरीके से उनसे जुदा हो जाओ। अगर जुदा होना है तो कुछ तोहफा ताइफ, कोई लिबास, कोई खर्चा दे के आसान अंदाज से जुदा हो जाए। वाशहिदू, और गवाह बनाओ, गवाह ज़वई अदलिन मिनकुम, दो अदल वाले तुम में से। कोई भी मामला हो तो उस पर दो गवाह बना लो, चाहे तलाक का, चाहे निकाह का, या और भी कोई मामला, तो शरीयत ने हुक्म दिया ज़वई अदलिन, दो अदल वाले तुम में से। वाक़ीमुश शहादत लिल्लाह, और गवाही दो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही को कायम करो। बाल लोग गवाही देने से डरते हैं, मैं नहीं गवाही देता मेरी दुश्मनी पड़ जाएगी, फलां आदमी मेरा मुखालिफ हो जाएगा, सच्ची गवाही दूंगा तो फलाना रिश्तेदार बिगड़ जाएगा, फलाना दोस्त बिगड़ जाएगा। भाई सच्ची गवाही को छुपाएगा तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा। तो रिश्तेदारों को बचाता है और दोस्तों को बचाता है, सच्ची गवाही नहीं देता तो अल्लाह पाक को नाराज कर लेता है। वाक़ीमुश शहादत लिल्लाह, कायम करो गवाही को अल्लाह के लिए। ज़ालिकुम युअज़ु बिही, ये वो हुक्म है जिसके साथ नसीहत की जाती है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। व मन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह ताला से डर जाए, अल्लाह पाक का तकवा अपनाए। यजअल लहू मखरजा, उसके लिए बनाएगा अल्लाह पाक मखरजा, निकलने का कोई रास्ता। देखो कितने इनाम है। जब तकवा होगा निकाह में, तलाक में, तो अल्लाह पाक कोई रास्ता बना देगा खैर वाला, भलाई वाला। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से रिज़्क़ देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं। अगर बेवी खामद अलग हो जाएंगे तो अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ है, अल्लाह ताला बीवी को भी अच्छा सबब लगाएगा और खामद को भी अल्लाह पाक बेहतरी के रास्ते खोलेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, फहुवा हस्बुहु, तो उसे काफी है। क्या जरूरी है कि इस औरत पर ही भरोसा करना है या इस मर्द पर ही भरोसा करना है? भरोसा अल्लाह पर कर ले। अदावत की और दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है कि जिसने तलाक दी है उसको कत्ल ही करना है और उसको फायर ही लगाना है। ऐसी बात हरगिज जहालत वाली बात है। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, बेशक अल्लाह ताला अपने काम को पूरा करने वाला है। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, तहकीक बनाया अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए एक अंदाजा, कदरा, अल्लाह पाक ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर किया है। वल्लाही
यइस्न मिनल महीज, और वो औरतें जो तुम्हारी औरतों में से हैज से नाउमीद हो चुकी है, या इसना मायूस हो चुकी है, नाउमीद हैज से, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों से ज्यादा उम्र हो गई, उसमें हैज का सिलसिला ही नहीं, या किसी बीमारी की वजह से, इनिर तब तुम, अगर तुम शक करो, अगर तुम नहीं जानते कि इन औरतों की इद्दत क्या है, फ़इद्दतुहुन्ना, तो उनकी इद्दत है सलासतु अशहुर, 3 माह, 3 महीने इद्दत है, और ये महीने चांद वाले, वल्लाई, और वो औरतें लम यहिज़ना, जिनको हैज नहीं आया, और वो कि जिन्हें हैज नहीं आया उनकी उम्र ही नहीं अभी इतनी, इनकी इद्दत में सलासा तो अशुर, 3 महीने है, 3 महीने। और जो औरतें अय्याम वाली हैं उनकी इद्दत अल्लाह पाक ने सूरतुल बकरा के अंदर बयान फरमाई है, सलासा तो कुरू, 3 हैज, 3 माहवारियां, वो इद्दत है जो सूरतुल बकरा में बयान फरमाई गई है। व उलातुल अहमाल, उलात, ये वाव आप देख रहे हैं, उलात में वाव जो है ये खाली है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इराब नहीं, जज़म भी नहीं, तो ये क्या दरस है इस बात में कि ये वाव सिर्फ लिखने में है, पढ़ने में नहीं है। व उलातुल अहमाल, और हमल वाली औरतें जो हामिला हैं, अजलहुन्ना, उनकी मुद्दत, उनकी इद्दत, अयज़अन हमलहुन, कि वो अपना हमल वज़ा कर दे, बच्चा पैदा हो, जब भी हो, और उसमें जितना वक्त गुजरे, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, इनकी जो इद्दत है वो अलग है। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह पाक का तकवा अपनाता है, बार बार ये लफ्ज आ रहा है तकवे का, निकाह में भी तलाक में भी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, और जो कोई अल्लाह पाक से डरेगा वो उसके लिए उसके काम में आसानी पैदा फरमा देगा, आसानी पैदा फरमा देगा। ज़ालिका अम्रुल्लाह, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अंज़लहू इलैकुम, उसने उतारा तुम्हारी तरफ। वमन यत्तक़िल्लाह, फिर देखा तकवे का हुक्म आ गया, और जो अल्लाह से डर जाए, अल्लाह पाक का तकवा अपनाए, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, तो वो उसकी बुराइयां दूर कर देगा। वयुअज़िम लहू अजरा, और उसे बड़ा अजर देगा, बड़ा अजर अल्लाह पाक अता फरमाएगा। अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, उन्हें वहां से रहाइश दो जहां तुम रहते हो। बीवियों को तलाक के बाद घर से नहीं निकालना, पहली तलाक के बाद जो रजी तलाक है, और दूसरी तलाक के बाद जो रजी तलाक है, जिसके बाद रजू हो सकता है, सुलह हो सकती है, उसमें औरत जो है अपनी इद्दत खामद के घर में पूरी करे। बार बार ये हुक्म आ रहा है, मिन वुजदिकुम, तुम्हारी ताकत से, जितनी तुम्हें ताकत है। वला तुज़ारुहुन, और ना उन्हें तंग करो, ना उन पर तंगी करो औरतों पर। लितुज़य्यिक़ू अलैहिन, कि तुम उन पर तंगी करते हो और तकलीफ देते हो। तकलीफ न दो कि वो घर से निकल जाए मजबूर होकर, ना अजियत पहुंचाओ। व इन कुल्ल उलाति हम्लिन, अगर है हमल वालियां, हामिला है, फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन, बस तुम खर्च करो उन पर। ये खामद की जिम्मेदारी है कि उनको खर्चा दे और उनको रहाइश दे, नानो नफका। ये नहीं है कि घर से निकाल देना है,
रैश भी खामद की जिम्मेदारी है, खर्चा भी उसकी जिम्मेदारी है। हत्ता यज़अन हमलहुम, यहां तक कि वो अपना हमल वज़ा कर ले। फ़इन अर्ज़अन लकुम, पस अगर वो दूध पिलाए तुम्हारे लिए। अर्ज़ाना ये जमा मुन्नस का सीगा है, अगर वो दूध पिलाएं तुम्हारे लिए। फ़आतूहुन्न उजूरहुन, तो उनको दो उनके उजरत। दूध पिला रही है, बच्चा जो होता है वो खामद का होता है। ये कुरान का फैसला है और यही हदीस का फैसला है। इसलिए कहा ना फ़आतूहुन्न उजूरहुन्ना, उनको दो उनकी उजरतें। खामद के जिम्मे ये फर्ज है कि उस औरत को खर्चा दे, बच्चे के दूध पिलाने की अलग मजदूरी दे, उजरत उसकी। वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ, और आपस में अच्छे तरीके से मशवरा कर लो। अगर तलाक हो गई है तो बाद में आपस में अगर औलाद है तो औलाद के बारे में आपस में मशवरा कर लो अच्छे तरीके से। इसमें अदावत वाली तो बात ही कोई नहीं, ना कोई लड़ाई वाली बात है, बल्कि फिर भी आपस में मशवरा जारी रखे। व तुम, और अगर तुम आपस में तंगी करो, इस कदर तंगी ज्यादा हो गई है कि औरत जो है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो बच्चा खामद का है, फिर खामद क्या करे। फसतुरदिउ लहू उखरा, तो अनकरीब उसे कोई और औरत दूध पिला देगी। उखरा, दूसरी औरत से दूध पिला लिया जाए और उसकी उजरत उसे दे दी जाए। लियुनफिक़ ज़ू सातिन मिन सातिही, लाजिम है कि खर्च करे। ज़ू सातिन, वुसत वाला, फराखी वाला। जो फराखी वाला है अल्लाह पाक ने बरकत दी है। मिल साथ ही, अपनी वुसत में से, अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करे। वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, और जिस पर उसका रिज़्क़ तंग किया गया। क़ुदिरा, तंग किया गया, जो तंग दस्त है, मुहताज है। फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, बस वो खर्च करे उस चीज से जो अल्लाह पाक ने उसको दी। जो मालदार है वो ज्यादा खर्च करे, और जो तंगदस्त है, जो मुहताज है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च कर ले। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला किसी शख्स को तकलीफ नहीं देता इल्ला मगर मा आताहा, जो अल्लाह पाक ने उसको दिया है। सयजअलुल्लाह, अन करीब बनाएगा अल्लाह ताला, बाद उसरी युसरा, तंगी के बाद आसानी। अगर आज तंगी है, गुजारा नहीं होता, तलाक हो गई है, तो अल्लाह ताला आसानी का कोई रास्ता खोल देगा। अजीज भाइयों, आपने देखा है कितनी मर्तबा ये लफ्ज आया है, वमन यत्तकिल्लाह वमन यत्तकिल्लाह। इसी तरह जो निकाह वाली आयाते करीमात है उनमें भी और तलाक में भी और हर मसले में इंसान को चाहिए कि अपने रब से डरता रहे, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा इनामात से नवाजता है। और तलाक के बारे में लोगों ने ऐसी ऐसी बातें निकाह रखी हैं, हाशा व कल्ला, जिनका इस्लाम के साथ और दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई इस तरह आदमी करता तो फरमाते आयुल्लाबु बिकिताबिल्लाह वाना बैना अज़हुरिकुम, लोगों अल्लाह की किताब से खेलते हो, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं। अल्लाह के प्यारे नबी हयात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीज भाइयों, तलाक में और निकाह में अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की आयतों से खेल करते हैं, जैसे खेला जाता है ना, खेलते हैं। अल्लाह ताला हमें इस खेल से महफूज फरमा ले, अपनी आयाते करीमात पर
अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।